Okay, hello friends, welcome back to the VFX Pipeline channel, and in this video we have a few guys from VFX industry, and today we are talking about few of the topics which is running in the current situation, which is people are getting laid off from VFX studios, and also they are hunting for new jobs. So in this video call we are going to help people who want to search for a new job, or if they have some questions in their mind how they're going to survive in next couple of months when this pandemic situation will be there. So hopefully you will find some of the answer for yourself, and that will help you to prepare yourself during this lockdown period. Okay, so let me start with the introduction of our guys here. We have Abhinendra Chauhan here. Hi Abhinendra. Hi, Raju bhai. Hi. Okay, and we have Kamlesh. Hi, Kamlesh. Hi, hi Uh, Raji. okay, Yeah. good. Okay, so let me start with the two points here, and then I will come back to you guys again. Okay, so the first thing is, I seriously, I'm feeling very sorry about the people who are getting laid off, and I'm very hard feeling for them. It's really very hard to actually losing the earnings, and because the thing is, this is not something that you are the only one who is actually affecting with this situation. Slowly, everyone is getting in the same situation. So now the thing is, instead of getting back and I mean giving some sort of I mean, here we need to take this in a very positive way. And if we see the hope, and the hope is, this is the time to learn and upgrade yourself. I mean, this is the time which you can take as a career upgradation time, and this is time that actually you can really take full advantage of that. We will give you some advices also, and we will help you to actually pick your subject, and we will try to help you in what kind of thing that you can do and how you can schedule your day to make yourself better and prepare yourself for your jobs. Abhinan, so and I want to come with you. I want to know that what do you say about, what do you want to say to the people who are actually just recently get laid off, and they are pretty upset, and how you want to give them some positive things to those guys. Firstly, all I can say is it's really sad that companies are doing that because of them, whatever the company they are working for, they have their position or whatever the I can say in a market value they have this because Mm, of these people. They were mm, working day and nights for them, and now suddenly like this in this pandemic, they are trying to lay off these people like they don't even value. mm, So I'm feeling really sorry for those guys, but mm, I can say if they are getting laid off or getting fired, I can say mm, so they should start learning few more things mm, for the starters, mm, because this is the only thing which can help them to survive. mm, Because if they lose their control, if they lose like if they feel like they, nothing has left, because I mm, know what financial pressure can do to the people, mm, but mm, still mm. they have to feel they Right. have to learn more, I guess. Right. And here I want to add one thing for everyone who is watching this video. Abhinendra with us, and he is also running a awesome YouTube channel. His channel name is CG Artist Academy. Link you can find in the description of this video. So guys, you can check it out, and he's also creating some awesome tutorials for Maya, RealFlow, Houdini, and whatever things that he have skills he always share. So I would recommend you can go and check his YouTube channel also. Okay, now I'm coming to Kamlesh. Kamlesh, how you feel the situation? I mean, what do you want to say to the people who are actually getting laid off these days, and what is the positive saying things that you can say to those guys? Yeah, actually, sorry for the that people who loses their job actually. So Mm-hmm. first thing is that if you lose your job or laid off your salary, so first thing, what I want to say that learn new things like sharp your skills. Like if you are a modeler, then learn about lighting, learn about texturing. So please, actually
take new things like it's a programming like Python. Kamlesh, or- Kamlesh, I want to add one thing here. It's fine. You can actually add in some points in Hindi also, because we have a lot of viewers who understand Hindi and they want to see in us in. I mean, हम लोग हिंदी में भी बात करें थोड़ा थोड़ा बीच में, No, तो I- it will be very good. I don't have any issues for that. Okay. Yeah. I'm I don't have not any saying. issues about I the mean, language. I just want to mix some of the Hindi and English both in this. हम लोग सभी मिक्स Okay. करके चलेंगे ना, तो एटलीस्ट सबको एक आइडिया लगेगा, क्योंकि So that's ये great. सभी तरीके के sounds लोग हैं. good, yeah. हाँ, है ना? हाँ, ओके. Yeah. तो अभी आप ठीक है, बताइए. हिंदी में चलते हैं. हाँ हाँ. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अभी अपनी जॉब्स को लूज कर रहे हैं या कंपनीज उनको फायर कर रही है या सैलरी कट कर रही है, तो सबसे पहला जो बेस है कि आप अपनी स्किल्स को इतना साफ कीजिए, अपने आप को यूनिक बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट जो लेवल जाने वाला है वो बड़ा टफ रहेगा कंपनीज के अंदर. तो बेसिकली आप अगर यूनिक हैं, आपके पास काफी अच्छी स्किल्स हैं, तो आप अच्छी जॉब पा सकते हैं. नहीं, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक ये भी समझने की जरूरत है कि कंपनीज कोई भी इंटेंशनली या मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं है ना? ये भी थोड़ा सा Intention समझने की किसी का जरूरत है. गलत. ये तो दैट्स बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर. ये किसी का पर्सनल मैटर नहीं है. ये आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपको फायर नहीं किया गया है, या कंपनी के पास वर्क की कमी है उसकी वजह से फायर नहीं किया गया है. हाँ, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है. इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि गाइस, अगर आपको लगता है कि यार आपको जैसे अगर ले ऑफ किया या आपको मतलब किसी भी तरीके से आपका सैलरी में कुछ भी अफेक्ट हुआ, पे कट्स हुआ या सैलरी कट्स हुए, तो गाइस दिस इज नथिंग रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस. ये आपके परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. That's great. पैंडेमिक सिचुएशन है, कंपनीज का इनफ्लो कम हो गया, प्रोजेक्ट्स कम हो रहे हैं, आपको पता है शूटिंग बंद हो गई है, इंडस्ट्री बंद हुई है, बाहर हॉलीवुड से काम नहीं आ रहा. सारे जो भी वीएफएक्स स्टूडियोज हॉलीवुड से डिपेंडेंट है वो लोग अभी रुके हुए हैं, और बाकी जो स्टूडियोज हैं जो बॉलीवुड का काम करते हैं, आपको पता है बॉलीवुड पूरा अभी इस टाइम बंद चल रहा है. जितने भी फुटेजेस हैं अभी स्टूडियोज में सिर्फ उन्हीं पे काम हो रहा है, नया कुछ फुटेज आ नहीं रहा. तो इसीलिए सिर्फ कुछ टाइम की बात है. एक बार जब स्टूडियोज जब शूटिंग्स चालू हो जाएंगी, फिर से काम वापस स्टूडियोज में आएगा. everyone needs all those kind of skills which actually we had previously. क्यों अभिनेंद्र, क्या बोलते हो आप? बट मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, और मुझे ऐसा लगता है कि विक्टिम दोनों ही हैं, कंपनीज भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं. बट एट द सेम टाइम दोनों को सपोर्ट करके चलना है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर हम सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. बिकॉज ये क्राइसिस सबके लिए है, इट्स नॉट फॉर द लाइक कंपनी के लिए ही नहीं है, सबके लिए है. तो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से इस कंडीशन में. Right. Just हमने सोच लिया कि कंपनी, I just want to add something in between Yeah, when we Kamlesh. were talking actually. Some people are tweeted about the companies to the PMO and the whatever the company. I saw that. Yeah. I just read on the Twitter yesterday. So some people are from some companies. I don't want to actually show the name of the company. Right. Okay. Like please मोदी जी, आप है ना इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप ये कीजिए, आप फलाना कीजिए. तो this is not right actually. Just because of if you are losing your job right now, so sometimes if the company have work, then why they should take you again in or in his company because of you are not आप उस चीज के लिए अभी अपने रास्ते बंद कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि कल को अगर जब फिर से इंडस्ट्री ओपन होगी तो कंपनी प्रेफरेंस देगी उन अपने एम्प्लॉयज को जो उस सिचुएशन में सबसे पहले फायर हुए थे, है ना. लेकिन अगर अभी से आप इस तरीके से ट्रोलिंग करोगे और कंपनीज के खिलाफ गलत बोलोगे तो डेफिनेटली कंपनीज को भी थोड़ा सा इस चीज को वो नोट करके रखेंगे. आई मीन आई सी वन पोस्ट इन Reddit, and in that Reddit there was a HR from that company, and that HR is saying that we are reading this entire thing. So one guy is saying, and that is very funny thing, and one guy is just simply saying that to reply to that HR is, what you gonna do? You gonna fire me again? Actually एक बात और है. क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में हो और आपको उस कंपनी ने फायर किया, तो आपने उस कंपनी के आपने उस कंपनी के विरुद्ध कुछ लिख दिया है, तो और कंपनियां भी तो देख रही है कि ये बंदे का बिहेवियर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है.
राइट नाउ। right, कल को right. कोई और कंपनी भी ये देखेगी कि बंदे ने उस टाइम पे इस तरीके से ट्रीट किया था, तो इसका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो वो आपको प्रेफर नहीं करेगी कि इस बंदे को जॉब के लिए लिया जाए। तो दैट्स द पॉइंट एक्चुअली आई वांट टू से दैट कि अगर आज आपको कंपनी फायर कर रही है या आपकी सैलरी कट कर रही है, तो आप ने मतलब अच्छा, यहाँ पे ना एक 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 काफी अच्छा कमेंट मिला मेरे को आज VFX पाइपलाइन चैनल के वीडियो के ऊपर। देयर वाज वन गाय हु सेइंग दैट that firing is just not I mean laying off is a very harsh decision for companies at this time. Maybe what they can do is they can just send them to a paid leave. I mean they can just say that कि okay आप छुट्टी पे जाओ और you will consider as a you are on leave, and once we will resume our company operation then we will take you back again. एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एटलीस्ट दे कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ परसेंटेज। आई मीन दे कैन कट द सैलरीज। I mean, even if they pay few percentage to those guys, that will be really helpful for them, and there will be kind of a emotional connectivity with the employees and the studios in between. So that is actually really helpful. I mean, in that case, I mean, I guess the second option is better, I guess, because if someone is paying you some amount, then definitely artists will be interested in doing work instead of getting like सारा सब कुछ निकाल देने से बेहतर है कुछ आता रहेगा। So वो एक चीज है, instead of saying कि okay paid leaves ले लो, okay but what should I do with my paid leaves? right. At least if I'm getting something, it would be great for me. In that way I can like still support my company, because I would like who the person is, the person is like working for that company for like for so long. अगर बेसिकली अगर आप देखो, कोई भी कंपनी वर्ल्ड के अंदर ऐसी नहीं है जो अपने एम्प्लॉय को फायर करे, बिकॉज ऑफ अगर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो कंपनी भी नहीं चलेगी ना। Yeah, company is actually employees. It's a group of employees who actually come work together and produce a really awesome work, and that's what we do. And that's what I mentioned is in my previous video. नहीं चाहिए। Yeah, that's what I mentioned in my previous video कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि मेरा सिर्फ 10 लोग 5 लोग ही काम करें। Everyone wants a huge company. सभी को चाहिए मेरे कंपनी में 1000-2000 ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ काम करे, ज़्यादा से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैं करूँ। Every company wants that. Every company wants that. बट सिचुएशन ये भी एक ऐसी है कि देखो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। ये चीज़ एंड में अभी हम आके इसी चीज़ पे इसको बोलेंगे। आप सभी को फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ऐसा मत सोचो। जो भी सिचुएशन है सभी के ऊपर आ रही है, इक्वली आ रही है। आप बिल्कुल स्ट्रांग रहो, थोड़ा सा इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके चलो। ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेके आ रही है। अभी हम वही आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके सामने। अभी यहाँ पे इस मतलब एज पर इस पॉइंट में कि कितने अगर आप ले ऑफ हो गए हो या अगर आपका सैलरी भी कट हो गया है या किसी भी तरीके से कंपनी ने आपके ऊपर कुछ मेजर्स लिए हैं, उस चीज़ को अभी की डेट में दैट यू कैन एक्चुअली टेक इट एट ए साइड। नाउ लेट जस्ट सी द अनदर पर्सपेक्टिव। उसका दूसरा पहलू अगर आप देखोगे तो ठीक है, आप ये समझिए मार्केट अभी पूरा चेंज होने वाला है। आने वाली टेक्नोलॉजीज पूरी की पूरी नए लेवल पे काम करेंगी। अब यहाँ पे मैं आप सभी से पॉइंट लेना चाहूँगा कि गाइस आपको क्या लगता है कि अभी जब मार्केट खुलेगा तो क्या वो पहले जैसा ही होने वाला है जैसे फरवरी में था, या कुछ चेंज होगा? तो चेंज होगा तो क्या होगा? अभिनेंद्र, योर पॉइंट। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ चेंज ऑलरेडी हो चुका है और पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं। और जो आने वाला मार्केट भी आई गेस खुलने के बाद भी परेशानियां ज्यादा ही रहेंगी, बिकॉज after this long break, whenever the company is getting started, definitely it will be hard to get projects. Okay, and it will be hard for getting artists also, because बहुत सारे artists ऐसे होंगे जो जा चुके हैं, because they are maybe angry on company or whatever the reasons are. People will start कि हमें इस कंपनी को ज्वाइन करना है नहीं करना है। ये सिचुएशन हर कंपनी के साथ आने वाली है, because now hiring is not very easy after this. When this is over, hiring इतनी आसान नहीं होने वाली है, because everyone is scared now, और सब लोग 10 बार सोचकर चीजें करेंगे। मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी अभी मुंबई से बाहर जा चुके हैं, अपने घर पे जा चुके हैं, आई डोंट नो हाउ मच टाइम that will take to actually these guys to come back to Mumbai again, because still Mumbai is growing, right? Exactly. And still I'm working from my hometown. I have to go back to Mumbai. And to be very frank, literally I don't know when I'm going to make it.
Right. So and that's it scares me very to be very frank. ओके कमलेश आप क्या बोलते हो क्या क्या इंडस्ट्री पहले जैसे रहने वाली है बस। क्या कुछ चेंज होने वाला है रहने वाली है मतलब हाँ। रही नहीं, अच्छा क्योंकि बेसिकली अगर अभी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी जो सबसे नेक्स्ट पोजीशन नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम। पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम तो काफी टाइम तक रहने वाला है इट विल बी देयर फॉर सो लॉन्ग Yes, yes, आई मीन yes. उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते पहले सारी कंपनीज ने नॉट जस्ट वन कंपनी आई वुड से एवरी सिंगल कंपनी दे जस्ट कीप वन थिंग yes. यार कि एनडीए है आईएसओ है वी हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद आवर क्लाइंट्स वी डोंट अलाउ phones cameras inside office every studios VFX studios almost every studios they're doing that they're taking measures because they want to protect the IP वो लोग को चाहिए कि यार Yes, yes. हमारा कोई मूवी का कुछ कोई सीन लीक ना हो जाए कोई फोटो का कोई लुक लीक ना हो जाए आज हम उस सिचुएशन में आ गए हैं मेजोरिटी अब आप देखो लिंक्डइन ओपन करो कहीं पे भी जाओ देखो वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे हैं वो लोग घर पे क्या वो अपनी स्क्रीन के सामने घर पे बैठे हुए हैं क्या वो क्लिक नहीं कर रहे होंगे या कहीं भी गलती से अगर पता चला कि वो काम कर रहे हैं उनका घर में उनके कोई कजन भाई बहन कोई और सेल्फी ले रहा हो उसमें वो फुटेज आ सकती है देयर आर लॉट ऑफ चांसेस आई मीन वी कैन हैव ए सेपरेट कॉल ऑन दिस कि हाउ टू मेक ए साइबर सिक्योरिटी ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम आई मीन वी कैन हैव दिस कॉल सूनर ऑन VFX पाइपलाइन जिसमें हम प्रॉपरली ये बात करेंगे कि सिक्योरिटी वाइज क्या हो सकता है पर मैं ये बता रहा हूं कि थिंग्स आर चेंज ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम में अभी पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी दे प्राइमरी कंसर्न इज फिनिश द वर्क फर्स्ट ठीक है तो अभी वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल यस कमलेश ओके बोलिए ओके तो वर्क फ्रॉम होम एक रहने वाला है दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आने वाले समय में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा बहुत मॉस अभी आने वाले यूज में कोई भी अपने ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रह के बिजनेस नहीं कर पाएगा और मेरे को लगता है कि सूनर ये आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट लिस्ट में भी आने वाला है कि बॉस प्रोजेक्ट तो मैं आज दे रहा हूं लेकिन अगर कल को फिर से कोई वायरस आ गया तो मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा डू यू हैव एनी प्लान आइडिया तो वो चीज अब आ गई अब देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है जैसे ही मैंने ये बात बोली ये दो चीजें एक आपने बोला वर्क फ्रॉम होम आई एग्री अभिनेंद्र ने बोला टेक्नोलॉजीज और लोगों की लोकेशन सिचुएशन दैट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट और एक हो गया कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी अब ये तीनों चीजों को अगर आप एक साथ जोड़ दो तो दैट अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखो तो इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी अभी सोचो कि कितना न्यू टैलेंट चाहिए आज की डेट में कंपनीज को जो कि इस नए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सके और जितने भी लोग अभी इंडस्ट्री से बाहर अपने घर पे जा चुके हैं वापस आने में अभी टाइम लगेगा आप लोग जो मुंबई में हो जो लोग अभी रिसेंटली जॉब से ले ऑफ हुए हो या जो भी है आपके पास भी एक अच्छे ऑप्शन है कि आप मुंबई में ही अभी काम कर सकते हो या आप बैंगलोर में हो मुंबई में हो हैदराबाद पुणे किधर भी हो अगर आप या वर्ल्ड के भी किसी कोने में हो किसी भी कंट्री में हो तो यू कैन एक्चुअली टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस टाइम है अपने स्किल्स को शार्प कर लो इतना शार्प करो कि जब भी अगर आपको कोई देखे तो इट विल बी कंसिडर लाइक यार 2-3 स्किल्स आपके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए जैसा कि कमलेश अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जैसे आप मॉडलिंग टेक्सचरिंग 2-3 चीजें आप एक साथ करके रखो ठीक है अभी बिल्कुल। हो सकता है स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी ना आए रिक्वायरमेंट जो हो आने वाली है इस टाइम पे ज्यादातर जर्नलिस्ट और ऑलराउंडर्स जो कि एक बंदा 3-4 लोगों का काम कर सके देखो उसका रीजन भी है भले ही आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है 500 लोगों का लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी आपको कि आप पूरे 500 लोगों को एक साथ बुला लो तो कंपनीज क्या करने वाली होंगी मेरा गैस है ऐसा कि कंपनीज माइट थिंकिंग कि यार आप अपने स्टाफ को कम कर दो और जो ऐसे स्टाफ को रखो जो एक ही बंदा 2-3 लोगों का काम कर सके यस तो उससे उनका कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा और प्रोडक्शन को भी एक लेवल पे मैच करेंगे आई एम अभिनेंद्र आर यू इन दिस कॉल या ओके अभिनेंद्र तो अभी यहाँ पे मेरा यही पॉइंट था कि जैसे भी अगर कंपनीज के पास ये पॉइंट आता है
कि बस आपका 500 का स्ट्रेंथ है या अगर 1000 का स्ट्रेंथ है, कई सारे स्टूडियोज तो अभी 1000 2000 से भी ऊपर है, तो अगर अपना रिड्यूस करेंगे तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास मल्टी स्किल्स हैं, क्या वो सिक्योर है? हाउ सिक्योर दे आर इफ दे हैव मल्टीपल स्किल्स, और हाउ सिक्योर दे आर इफ दे लर्न न्यू स्किल्स? आई कैन से जो लोग जर्नलिस्ट हैं, आई गेस उनके पास एक प्लस पॉइंट है क्योंकि दे नो मल्टीपल थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अगर कंपनीज अगर ट्राई करेंगे ऐसे आर्टिस्ट को लेने को, तो डेफिनेटली उनके डिपार्टमेंट्स बचेंगे. These people can do lot of work, okay, so they can save their money, okay. Even ये सारी सिचुएशन से पहले भी ये आई गेस जनरल आ चुका है कि लोग मल्टीपल जो मल्टीटास्किंग पीपल होते हैं उनको हायर पहले प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज nobody want to rely on a single artist these days, because if you don't know multiple things you won't be a asset for a company, what I think, because working in a single in a one department as a modeler or as a texturing artist, I don't think so is feasible for anyone these days. Okay. So I guess it would be better. Okay. Kamlesh, what do you think? अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपके ही चैनल पे एक वीडियो देखा था. तो जहां तक मुझे लगता है कि जैसे मल्टीपल थिंग्स है, लाइक मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, कंपोजिटिंग, एनिमेशन और एफएक्स, व्हाटएवर थिंग्स, पर इनके बिटवीन अब ऐसा कुछ नया क्या है जो मार्केट के अंदर बहुत कुछ वैल्यू रखता है. सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल प्रोडक्शन. Okay. Now you actually catch my next point, which I'm going to discuss here. Yes. Yeah. Then that's your next point. और मैंने आपको बोला, मैंने आपके चैनल पे ही इसके बारे में पढ़ा है और देखा है. तो this is the very big thing in market right now. Right. If you are learning. What happened to? I think Kamlesh mic is having some problem. Yeah, I mean, he started very good point here. Virtual production is one of the biggest hope for VFX and animation industry, where we can see that we can see काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी. पहला तो ये कि आपको एक नया स्किल सीखना है तो अनरियल इंजन आज ही ओपन करो और स्टार्ट करो. काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप किसी भी 3D प्लेटफॉर्म से जा रहे हो तो आपको उसके अंदर इजीली मिल जाएंगी. जैसे कि आपने अपना मॉडल किया माया में और उसके बाद में उसको आपने इंपोर्ट कर लिया अनरील में. शेडिंग वेडिंग आप इसके अंदर बढ़िया कर सकते हो, लाइटिंग प्रॉपर कर सकते हो उसके अंदर, रेंडरिंग दे आर लॉट ऑफ थिंग दैट एक्चुअली यू कैन डू इन दैट, राइट. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप कर सकते हो. दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि आपको क्या बेटर एडवांटेज मिलेगा. शूटिंग देखो काफ़ी अभी आउटडोर में नहीं होने वाली, और अभी ILM का अगर आपने वर्चुअल प्रोडक्शन देखा हो जो अभी रिसेंटली स्टार वॉर्स पे किया, उसने LED वॉल्स लगा के उन्होंने पूरा की पूरा शूट जो है अंदर किया, एंड दैट्स रियली वेरी वेरी गुड थिंग. एवरी स्टूडियो इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट राइट नाउ, बट वो इतना ईजी नहीं है कि उसको ऐसे करके स्टार्ट किया जाए. उसके लिए वी नीड अ प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट, वी नीड अ टेक्निकल आर्टिस्ट, वी नीड टेक्निकल प्रोग्रामर्स, we need solid programmers who have control over our programming language. Yeah, it's fine. We are continuing that. So programmers चाहिए, solid programmers चाहिए, C++ programmers, ठीक है, Python developers चाहिए for making tools. थोड़ा सा बंदे ऐसे knowledgeable चाहिए, थोड़ा माया का API भी जानते हो, मोशन बिल्डर का API भी जानते हो. तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट सिंकिंग करना है, जैसे डेटा वेटा इधर से उधर लाइव लिंकिंग करके, तो वो भी आना चाहिए. आपको थोड़ा लाइव लिंकिंग का अगर आइडिया चाहिए तो यू कैन वॉच आउट माय प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने बताया कि अनरील को और माया से कैसे लाइव लिंक के थ्रू आप ऐड कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको स्टार्ट करनी चाहिए. आपको एक नया स्किल मिलेगा और चांसेस विल बी मच हायर दैट यू विल सेलेक्टेड बाय कंपनी, ठीक है ना. वर्चुअल प्रोडक्शन मेरे को तो इसके अंदर बहुत ही होप लगती है, और अभी सिर्फ जो रीज़न है वो शायद ये भी है इसके अंदर कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको इट्स ए मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे आप सिर्फ सॉफ्टवेयर आपने कोई इंस्टॉल कर लिया है देन यू कैन डू द वर्चुअल प्रोडक्शन. इज नॉट लाइक दैट. You need a dedicated hardware, you need a HTC device to actually wear and a VR kit, you need a proper
Okay, so it's like running out of time. We remove 40-minute limit. Okay, that's good. So guys, this is the Zoom thing which they just said that they removed the 40 minutes limit. So that's really good. Okay, so back to the point. So virtual production के अंदर the अच्छी चीज़ ये है, the interesting चीज़ जो ये ही है कि यार उसके अंदर ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको दुनिया भर के नए नए हार्डवेयर्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है कि देखो अब इतना डिटेल में नहीं जाता, कोई डिटेल में अपने को एक वीडियो बना देंगे उसके लिए सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं और ये नए स्किल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हार्डवेयर की बात करूँ तो आपको एलईडी बॉल्स कैसे सेटअप करना है, उनको कनेक्ट कैसे करना है, कितने मल्टीपल जीपीयूज को एसएलआईज के साथ कनेक्ट करके कैसे आउटपुट निकालना है। आपके पास 10 ग्राफिक कार्ड आ गए, अब आपको वो 10 के 10 ग्राफिक कार्ड्स की पावर एक ही जगह पे लेके आनी है। आपने कैसे एंड डिस्प्ले को यूज़ करना है, आपको पिक्सल पिच की जानकारी होनी चाहिए कि आप कितने डिस्टेंस पे अपनी एलईडीज को प्रोजेक्ट करने वाले हो। आपकी सारी की सारी एलईडीज एक साथ सिंक होके कंप्यूटर में डेटा लेके आना और उसके अंदर आपको अनरील का रियल डेटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक ए इंटरेस्टिंग जॉब, इतना फन है उसके अंदर। और उसके अंदर भी एक और चीज अगर ऐड कर दी जाए कि लाइक आपके पास मोशन कैप्चर का पूरा सेटअप है और यू जस्ट वियर इट एंड वो जो सेंसर डेटा आईएमयू सेंसर हो या फिर वो सीधे आपका जितना भी जो आपको जो सेंट्रॉइड या जो अदर टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, अगर उसके थ्रू आपका डेटा अगर डायरेक्टली मोशन बिल्डर और माया के अंदर जा रहा है और वहां से होता हुआ अनरील में आपको आपका रियल कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब आहा हा, एवरीथिंग इज लाइक आई मीन इमेजिन करके भी ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज रियली एक्साइटिंग स्टफ, राइट। तो ये एक बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? अभिनंदन क्या बोलते हो वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में? एक नया टॉपिक मिल जाएगा सीखने के लिए। definitely and I guess it is the future because the situation we are in now, virtual things will be like better for everyone, even for the clients to show their projects or whatever. I guess definitely we should move on to this virtual reality wala thing. और अनरील एपिक गेम्स तो अभी इतना प्रमोट कर रहे हैं अनरील इंजन को। आई मीन not last month, in February I met with the general manager of Epic Games, Quentin. He was in Mumbai, so I personally met him and he invited me for a training, Unreal trainings. So I went there. काफ़ी अच्छा मतलब ट्रेनिंग दे रहे थे लाइव। आई मीन आप यकीन करो कि वो हॉल था पूरा उनका, फेमस स्टूडियो के अंदर वो पूरा ट्रेनिंग हो रहा था। उधर पूरा हॉल था, देयर वाज अराउंड 60 पीपल और मोर देन 60। आई मीन आई कांट काउंट कि कितने थे, पर पूरा हॉल भरा हुआ था और एवरीवन गेटिंग ए डिसेंट लैपटॉप विद क्वाड्रो आरटीएक्स ग्राफिक कार्ड in their desk, and there is a guy who are actually a guy who are actually on projector, वो ट्रेन कर रहा है ऊपर से और बाकी सारे लोग जो है अपने पर्सनल लैपटॉप पे, मतलब वो मीटिंग से पहले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा था आप कितने लोग आ रहे हो, तो एवरीवन हैव देयर ओन पर्सनल लैपटॉप ड्यूरिंग द सेशन और एक वीक का सेशन। आई मीन जो जिस तरीके से अनरील ने एपिक गेम्स ने ये इनिशिएट लिया, इट्स वेरी गुड। और जो बंदे थे ट्रेनर्स वो ऑस्ट्रेलिया और जो भी बाहर से जो कि एक्सपर्ट हैं अनरील के, वो लोगों ने आके ट्रेनिंग दिया। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अनरील भी आपको प्रमोट कर रहा है, देखो आपको कुछ लाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, इट्स फ्री, ठीक है। तो वो सिर्फ रॉयल्टी अगर आप कुछ उससे कॉमर्शियल कुछ एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आप अर्न करना शुरू कर देते हो देन ओनली यू पे, और वो भी आपका वो बहुत ही ईजी है। अगर उसके साथ आप इतना ज़्यादा कमा लोगे अगर उसमें अगर आप अच्छे से काम करोगे तो दैट्स रियली वेरी गुड। तो अनरील का रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उसका मार्केट प्लेस एकदम रिच है। आई मीन maybe we'll have a call on Unreal, specially on Unreal, where I will show you the entire scenes of Unreal, like कि कैसे उसके अंदर आप चीज़ों को एकदम रियल टाइम देख सकते हो, ठीक है। Okay guys, so virtual production is the one thing, definitely I understand that this is the part. Now let's just move to our next point in this, जहाँ पे अपने सारे भाई लोगों को, सारी बहनों को भी, जितने भी लोग हैं उन सभी को एक डायरेक्शन मिल जाए कि यार कि अब करना क्या है, ठीक है। तो एक गाइस एक चीज़ तो ये हो गया, आप वर्चुअल प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरा मैं एक एडवाइस दूंगा कि यार प्रोग्रामिंग तो सीख लो। देखो मैं खुद एक आर्टिस्ट था, मैं खुद भी एक प्रोग्रामर ही था, मैं खुद भी एक एफएक्स आर्टिस्ट था। आई स्टार्टेड एज ए ट्रेनी वीएफएक्स आर्टिस्ट, देन आई बिकम वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड वीएफएक्स लीड, वीएफएक्स टेक्निकल डायरेक्टर। फाइनली पता चल गया कि एफएक्स में एक टाइम पे आके लिमिट है, आगे बढ़ नहीं सकते आप। तो टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करके प्रोग्रामिंग सीखी,
कुछ डेमो भी तैयार किए। मतलब प्रोग्रामिंग सीखने वाले मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी उनसे पूछो तो वो पता है क्या कहते हैं, अभी मैंने वेरिएबल लिखना सीख लिया है, अभी मैं सिंटैक्स सीख रहा हूँ। आई मीन वो हेलो वर्ल्ड से आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो एक सॉलिड प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके हाथ में, उस प्रोजेक्ट को लेके चलो और उसका एक डेमो बनाओ। सोर्स कोड को ओपन रखो, गिटहब पे डालो और उसको दिखाओ लोगों को, देखो साहब मैंने प्रोग्रामिंग कर ली, ये मेरा टूल है और मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। अगर आज की डेट में स्टूडियोज सारे अच्छे टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि बॉस आप कर क्या सकते हो, आप सिर्फ अपनी एबिलिटी दिखाओ। थैंक गॉड कि ये चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं कि आज की डेट में आपको टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में और टेक्निकल पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए बीटेक की डिग्री बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट अभी आपको बीटेक और कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं चाहिए बॉस। अगर आपको आज की डेट में कुछ चाहिए तो यू नीड ए डिसेंट एक्सपीरियंस और ए डेमोन्स्ट्रेबल थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट। आप किसी भी कंपनी में जाओ और उनको बोलो आप मेरे को कुछ भी काम दो, मैं आपको करके देता हूँ और आप जॉब पालोगे। सीधी सीधी बात ये है। अभिनंदन आप क्या बोलते हो कि प्रोग्रामिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और क्या उनको सीखनी चाहिए ये टाइम पे? Definitely, I guess I'm the person which I want to learn. From Okay. very long time I'm trying to, but maybe I can say I'm not able to. But still, I ओके guess this is the तो right यहाँ time पे to- आप एक चीज हमारे सभी लोगों को ये बता सकते हो, व्यूअर्स को, कि आप करना तो चाहते हो, इच्छा है, पर क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो शायद आपकी और उनकी भी कुछ मैचिंग हो जाए। मतलब व्हाट इज द रीजन? जब आपको पता है कि ये इजी है, आप मतलब कर भी सकते हैं तो No, मैंने ये नहीं बोला इजी है। मुझे इजी नहीं लगती, मुझे डर लगता है जब भी मैं एक चीज यहाँ पे एक चीज है, डर के आगे जीत है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि डर के आगे जीत है। एक बार देखने में पता है जब वो ब्लैक स्क्रीन आती है और दुनिया भर के कोड दिखाई देते हैं ना सामने, तो बहुत डर लगता है। आई मीन मेरे को भी पहले बहुत डर लगता था। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, माया गाइज अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, एक रैंडम एक्सप्रेशन लगाते थे माया के पार्टिकल्स में, ठीक है, वो रोटेशन के लिए रैंड पीपी रोटेशन पीपी उसमें, ठीक है, रैंड 360 उसको पहली बार सीखने के लिए भी उसको नोटपैड में कॉपी करके रखते थे कि भाई ये दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, इसको कहीं पे सेव करके रखो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो देखो एक आया हैंड्स अप हुआ उसका। तो मैं भी वहां से ही निकला हूं भाई। अभी कोई तो माया के जो एक्सप्रेशंस ही इतना डरा देते हैं, तो ऐसा लगता है यार जब फुल फ्लैश डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उसमें तो पता नहीं यूआई पूरा लिखो, इंटरफेस अलग काम करेगा, एपीआईज अलग काम करेंगी और सारा रियल टाइम अपडेट करना है तो थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, और उसके बाद परफॉर्मेंस भी चाहिए उसके अंदर। अगर ऑथेंटिकेशंस वगैरह और डाल दिए तो भाई और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टार्ट करो, आप कुछ मत करो, आप वीएफएक्स पाइपलाइन चैनल पे जाओ और वीडियोस देखना शुरू करो। छोटे से बड़े तक सारे के सारे वीडियोस के हर लेवल के स्किल्स के वीडियो आपके पास हैं। मेरा रीजन ही है बनाने का कि एटलीस्ट सभी लोगों को, वीएफएक्स इंडस्ट्री के लोगों को एटलीस्ट एक एप्लीकेशंस बनाने का आइडिया लग जाए। क्योंकि देखो दुनिया भर के टूल्स ऐसे होते हैं जो आपकी खुद की लाइफ को ईजी कर देते हैं। दूसरों को तो छोड़ो, आप अपने लिए बना लो ना उनको, आपका काम ईजी होगा। आप दिन में 2 शॉट खत्म करते हो तो 3 शॉट खत्म करोगे, ज्यादा काम खत्म करोगे, आपकी जॉब ज्यादा सिक्योर रहेगी, है कि नहीं? और प्रोग्रामिंग तो एक ऐसी चीज है जो आपके खुद के काम में भी बहुत आने वाली है, ठीक है। कमलेश आप बताओ इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको क्या लगता है, प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए या इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? इंटरेस्टिंग है, यस देखो मैंने अभी कुछ बुक्स मंगाई है। Oh my God! Oh yeah, that's good. That's interesting. I really appreciate So, that. This is really good book. Head First Python is the first book which I read. This is ये मेरे को शायद मैंने आपके चैनल से ही इसके बारे में नॉलेज से लिया था कि दिस इज वेरी ग्रेट बुक फॉर पाइथन एक्चुअली। हेड फर्स्ट पाइथन और रियली की बुक है। हाँ, बिगिनर प्रोग्रामिंग पाइथन। सो 10 साल से मैं 3D कर रहा हूँ, तो एक जो लिमिट थी ना, उस लिमिट पे आके मैं पिछले 2-3 साल से अटक गया हूँ। उससे अच्छा। आगे बढ़ने को भी कुछ नहीं है और उससे आगे सीखने को भी कुछ नहीं है। ओह, तो अभी आपने मतलब ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बुक्स लेके आए, क्योंकि पता है मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि लोग बुक्स
पढ़ना भूल गए हैं अभी। पता नहीं Yes, yes. मतलब ऐसा नहीं कि आप बुक्स प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ो, बुक्स वैसे भी पढ़नी चाहिए आपको। बुक्स पढ़ने बिल्कुल, से आपको अभिनेंद्र आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा कुछ बता पाएंगे, क्योंकि इसने ही मेरे को आइडिया दिया कि यार भाई बुक्स से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी पहले ट्यूटोरियल्स ही पढ़ता था। When he suggested me long time back, it's like around नहीं, books अच्छी रहती है, 2015. बिल्कुल अच्छी रहती है। तो और माइंड I think Abhinand, you remember that day that you showed me the Kindle, right? So tell me some of the advantages of books. I mean, users can also take that. Sorry, your voice muted. Your voice. या हाँ. सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ कि जो बुक पढ़ने से जो फील आती है ना, वो टैबलेट या किंडल या व्हाटएवर द वर्जन यू आर यूजिंग फॉर रीडिंग इट, नहीं आती। you will never get that. The हाँ. smell of it. I'm talking about me personally. Okay, I like the smell of the book when we like open it, whatever. Because mostly I read novels and all. मैं बहुत पढ़ता हूँ. This is the feeling actually. Exactly. It's about feeling. Reading. Yes. It's not like कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं. It's a feeling. और वो किताब अगर आप कंप्यूटर में डाल दो, उसके बाद पढ़ो, तो you won't get that feeling. Digital is nothing. अगर किताब पढ़नी है तो डेफिनेटली आप किताब पढ़ के आपको जो फील आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, लर्न करने में मजा आएगा. यू आर यूजिंग व्हाटएवर, लाइक इफ आई कैन से राजीव भाई, so he is reading book for programming. He is loving it. I read for like novels and stories and whatever other stuff. I like it. But अगर वही चीज अगर मैं कंप्यूटर पे पढ़ता हूँ या किंडल पे पढ़ता हूँ, I don't get the feel, and that's why I don't like to read them on that whatever the form is. So definitely अगर आपको पढ़नी है तो किताबों के थ्रू ही पढ़े, तो आई गेस वो बेटर ऑप्शन होगा, जो भी आपको सीखे. तो गाइस यहाँ पे आपने एक चीज देखी. Attachment. यस. तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि बुक से पढ़ना डेफिनेटली इट विल बी ए ग्रेट एक्सपीरियंस. और अच्छी चीज ये रहती है ना, कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं. और मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि मेरे को एक अपना लाइट मार्कर रख के बुक पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट आता है स्कूल टाइम से, कि जब भी मैं बुक खोल के कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल गई ना, उसको तुरंत उसको हाईलाइट कर देता हूँ वो पर्पल, हाँ, वो कलर से. तो उससे क्या है कि एटलीस्ट आई कैन सिंपली गो ऑन. लोगों का सबसे पहला पॉइंट होता है. राइट. तो और मैं एक चीज और बताता हूँ, पता है क्या है, मैं जब भी मैं काफ़ी मतलब एज ए टेक्नोलॉजी सुपरवाइज़र, हेड ऑफ टेक्नोलॉजी अभी मेरा करंट डेजिग्नेशन है. इससे पहले मैं हेड ऑफ टेक्नोलॉजी था मलेशिया में, टेक्नोलॉजी सुपरवाइज़र रहा हूँ. मैंने पिछले 6 साल में दुनिया भर के इंटरव्यूज़ लिए हैं टेक्नोलॉजी के लिए, प्रोग्रामिंग के. मैं एक सिंपल सी टिप दे सकता हूँ सभी को कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछता जो ट्यूटोरियल्स में होता है. मैं सिर्फ वही पूछता हूँ जो किताबों में होता है, क्योंकि वो मेरे को एक डायरेक्ट इंसाइट दे देता है एक बंदे का कि ये किताबें कितनी पढ़ता है, जरा मैं देखूं. क्योंकि आज की डेट में ना गाइस, प्रोग्रामर्स, अगर आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं बताता हूं आपको, 90% जो प्रोग्रामर्स इंटरव्यूज के लिए आते हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते मेरे को, और उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं. और वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सेट. ठीक है. और इसका पूछने का डिफरेंस तरीका है कि मतलब हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए एरे. अगर एक लिस्ट है आपके पास, उसमें से कुछ एरेज आपको रिमूव करने हैं, डुप्लीकेट्स में से ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हैं, तो आप कैसे करोगे. और यू कैन यूज सेट फॉर दैट, राइट. तो पीपल आर एक्चुअली राइटिंग ए फॉर लूप और दुनिया भर की चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. मतलब जो चीज़ एक ऐसे हो सकती है उस चीज़ के लिए इतना सोचते हैं. और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उन लोगों ने ना बुक नहीं पढ़ी, वो डायरेक्टली कुछ बड़ा बनाने के लिए चले गए. तो अच्छी बात है, आपको वीडियोस एक इंस्पिरेशंस दे सकते हैं. अगर आप कहीं पे अटके हुए हो तो आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. बट अगर आपको प्रॉपर ए से जेड तक जाना है तो आपको पहले एक कोई बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो. कमलेश ने अभी 2 बुक्स दिखाई. आई पर्सनली प्रेफर बोथ ऑफ द बुक्स. आई हैव दिस इन माई डेस्क राइट नाउ. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. ठीक है. कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट. फॉर ऑल द गाइज हु लेड ऑफ, और या तो फिर उनकी जॉब चली गई है या तो फिर वो अभी घर पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, टाइमर चालू है कि कब उनकी जॉब जाने वाली है, उनके लिए नेक्स्ट चीज अभी हम आपको बता देते हैं कि देखो, इस टाइम पे वो जमाना गया कि जब पीपल आर वेटिंग फॉर मेकिंग थिंग्स कि यार कैसे सीखे. अगर आज की डेट में अगर आपको कोरोना वायरस की दवाई भी बनानी है ना, तो वो भी आप सीख सकते हो.
अब ये मत बोलना कि कोरोना वायरस की दवाई बनाने के लिए अब आप आज ही बैठ जाओगे एंड यू कैन मेक इट। मेरा कहने का मतलब ये है कि द वायरोलॉजी, You can do it actually. द एंटायर जो भी व्हाट इज वायरस, यू कैन स्टार्ट विद दैट एंड देन यू कैन स्टेप बाय स्टेप गो। और सारा का सारा कंटेंट विकिपीडिया, ऑफिशियल वेबसाइट्स, साइंस ऑफिशियल वेबसाइट, WHO की वेबसाइट, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे साइंस चैनल्स हैं। मैथ आपको पढ़नी है, आप कितनी भी लेवल की, हाई से हाई लेवल की मैथ पढ़ सकते हो आज की डेट में। कैलकुलस वैलकुलस, पहले ये सब चीज़ें स्कूल के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर सिखाया करते थे। आज की डेट में आप खोलो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। एक तो मेरा छोटे भाई ने एक चैनल बनाया जो सिर्फ मैथ्स की पढ़ाता है, जो सिर्फ IAS IPS की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, वो मैथ्स के ही वीडियोस बनाता है और इतने शानदार वीडियो बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, कि यार आपके पास कंटेंट बहुत अवेलेबल है, आप ये डिसाइड करो कि करना क्या है, ठीक है। आप पहले एक चीज़ डिसाइड कर लो कि मेरे को ये चीज़ करनी है। अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट में लिखो कि यार मेरा मैं अभी इतने टाइम से ये कर रहा था और अब आगे मेरे को क्या करना चाहिए, तो वी विल ट्राई टू गिव यू सम सजेशंस, ठीक है। अगर आप कंपोजिटर हो पिछले 5 साल से, अब आपको कुछ नया करना है, लिखो कमेंट में कि आई एम ए कंपोजिटर। अगर आप एक रोटो आर्टिस्ट हो, पिछले 10 साल से रोटो काट रहे हो, लिखो क्या व्हाट न्यू कैन आई कैन डू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा और एंगेज हो जाएंगे और आपको एक अच्छा फीडबैक भी दे सकेंगे इसके अंदर। तो लर्निंग स्टार्ट करो। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि वो लर्निंग जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज लर्निंग होनी चाहिए, रैंडम लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि आज तो आप पाइथन कर रहे हो, कल आप अनरील कर रहे हो, परसों वर्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हो, आज फिर माया स्टार्ट कर दिया, कल सिनेमा 4D स्टार्ट कर दिया, फिर तुमने आर्नोल्ड देख लिया, फिर उसके बाद में हुडिनी खोल के बैठ गए, फिर रियल फ्लो पे चले गए। ऐसे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। आपको सिर्फ उन सॉफ्टवेयर के नाम याद हो जाएंगे और उनको कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि उनके नाम और उनको इंस्टॉलेशन करने के लिए आप कोई IT में थोड़ी ना जा रहे हो कि आपको इंस्टॉलेशन करनी है उन सॉफ्टवेयर की। आपको तो उनका यूज़ करना आना चाहिए ना। एक चीज़ पकड़ो पर उसको फाइनल करो, अच्छे से करो, ठीक है ना यार। अभिनेंद्र और कमलेश, ये मैंने बहुत देखा है, लोगों की प्रॉब्लम होती है कि दे आर एक्चुअली स्विचिंग ए लॉट। यहाँ पे हम उनको कैसे एडवाइस कर सकते हैं कि भाई एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके रखो, ज़्यादा स्विच मत करो। अभिनेंद्र, लेट्स स्टार्ट विद यू। हाँ, मेरे हिसाब से लाइक यू सेड कि भटकना नहीं है सबसे पहले तो, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज लाइक कि आज कुछ अच्छा लगता है, कल कुछ अच्छा लगता है, परसों कुछ और अच्छा लगता है। इवन व्हेन वी आर लाइक स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, व्हेन वी ट्राई टू डू द रेफरेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट, ओके, आज ये रेफरेंस अच्छा लगा, आज ऐसा लुक बनाते हैं, कल एक नया रेफरेंस मिलेगा, फिर ऐसा लुक बनेंगे। तो डे बाय डे वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लॉक फॉर श्योर कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। और उस टाइम तक डेफिनेटली अपने को हिलना नहीं है कि हाँ, क्योंकि होता क्या है, जब हम YouTube पे बैठते हैं या जब हम सर्फिंग करना स्टार्ट करते हैं, वी गेट मोर ट्यूटोरियल्स। लाइक हमें एकदम मस्त नया नया हुडनी में ट्यूटोरियल मिल गया, लाइक अभी कैसे हाँ ये तो बहुत मस्त है, क्या फालतू में कर रहा था, नहीं पहले ये करता हूँ, ये तो कल करूंगा। या फिर किसी ने अपनी R&D डाल दी, उसको ही देख के एकदम से जोश आ जाता है, इंस्पायर हो गए अचानक से। और वो इंस्पिरेशन अगले 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है अगर आप तभी उस चीज को बनाने बैठ जाओगे तो। यू विल गेट कि आप कितने पानी में हो, राइट? बिकॉज इंस्पिरेशन देखना अच्छा लग रहा है, बट हाउ दे गेट देयर यू डोंट नो दैट। बिकॉज हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली वो चीज फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब नहीं इसने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। होता क्या है, 4 दिन हम टाइम वेस्ट करते हैं और देन वी आर बैक टू फेज 1। यार क्या करूं, फिर हम वही चीज स्टार्ट करते हैं। तो थिंग इज यू डोंट हैव टू डू दैट। if you are doing something, if you have like assigned yourself कि हाँ मुझे ये ट्यूटोरियल बनाना है या मुझे ये चीज लर्न करनी है या मुझे ये टास्क करना है, better make your to do list. That way you can achieve your goals day by day instead of roaming around other stuffs. I think this is the right way to proceed in this time. कमलेश आप क्या बोलते हो? लोग बहुत भटक जाते हैं, करने कुछ बैठते हैं और निकल के कुछ और आते हैं। उनके लिए भटक तो जाते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, ज्यादा बातें बोलने से क्या वो अब इसमें भी भटक जाएंगे। एग्री। कहीं पे मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, हाँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को
नियमित तौर पे अगर 10 मिनट देता है तो वो उसके ऐसे रिजल्ट पा सकता है कितने दिन तक, भी नहीं कर कितने सकता। दिन तक, कितने दिन तक? डेली नियमित तौर पे जब तक उसको वो रिजल्ट नहीं मिल जाता जिसकी उसने एक प्रॉपर अपना लक्ष्य नहीं बनाया हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि आप किसी कार्य को 5 मिनट करिए, डेली करते रहिए, करते रहिए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपने खुद ने भी कल्पना नहीं की हो। तो लेकिन क्या होता है, आपको माइंड को कंस्टेंट करके उस कार्य को करते रहना होता है। अब 10 मिनट इसको कर लिया, अगले दिन 15 मिनट किसी और को काम कर लिया ना, फिर वो खिचड़ी बन जाती है। तो वो फिर आप जिंदगी में कभी कुछ सीख ही नहीं पाते। तो अभी जैसे अगर क्या एडवाइस दोगे, अगर किसी को हुडिनी सीखना है, अगर किसी ने वो माया का बंदा है, उसने माया ही किया है, पर अभी आगे चल के उसको देखना है यार मेरे को तो हुडिनी इज लाइक मेरे को इसमें काम करना है, तो आप क्या बोलते हो, क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए, कैसे करे फिर वो हुडिनी? नहीं, अगर उसको हुडनी करना है ना तो फिर सब चीजों को पहले तो भूल जाए, वो सारी चीजों को कचरे में डाल दे हुडनी के अलावा। मतलब बाकी मतलब चीजों को, बाकी चीजों को उस टाइम पे पैरेलली ना करे, क्योंकि अगर वो भूल गया तो फिर वो उसको कुछ तो उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए ना माया का भी। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि बाकी चीजों को एकदम साइड कर दे और सारा अपना माइंड का जो पावर है वो हुडी पे लगाए, उसके लिए नई नई चीजें देखे। जैसे आपके चैनल पे हुडनी के बारे में काफी सारी चीजें, कहने का मतलब ये है बाकी बहुत सारे चैनल है जहाँ पे हुडनी से रिलेटेड चीजें मिलती है, तो अपना सारा एनर्जी जो है वो हुडनी पे ही लगाए। फिर वो अब क्या है, आज 2 दिन हुडनी कर लिया, फिर माया पे आ गया, फिर कल बैक्स पे चला गया, फिर रियल फ्लो पे आ गया, तो अपनी एनर्जी को उसने स्प्रेड कर दिया। ये एक सॉलिड पॉइंट है, और यहाँ पे अभिनेंद्र मैं आपसे भी पॉइंट लेना चाहूंगा, क्योंकि आप माया आपका मैंने देखा, आप पहले माया यूजर थे स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर आपका एक क्रेज देखा मैंने, जिस तरीके से बहुत ही हाई लेवल पे आप पहुंचे ब्लेंडर के अंदर, आपका आउटपुट रियली एक रियलिज्म की बिल्कुल लेवल पे पहुंच चुका था। और ब्लेंडर में तो वो आप ट्रांजिशन बताओ कि माया से ब्लेंडर में जाना, वो आपने क्योंकि उस टाइम पे आपने खुद से लर्न किया वो, और यहाँ पे अभी सभी लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो खुद से कैसे लर्न करें। और आपके चैनल पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं सीजी आर्टिस्ट एकेडमी पे इसके, और ब्लेंडर का काम भी आपने अपलोड किया हुआ है, तो वो चीज़ आप बताओ कि माया से ब्लेंडर में क्यों आए, और फिर ब्लेंडर से माया तो आपको आता ही था, और आपने अभी रिसेंटली हुडिनी स्टार्ट किया काफ़ी फ्यू मंथ्स बैक, और वो आपका ट्रांजिशन पीरियड कैसा रहा, तो आप वो जो आपके लर्निंग टेक्निक्स हैं वो थोड़ा सा शेयर करो। नहीं, मैं माया यूज कर रहा था हुडनी पे, अपना सॉरी ब्लेंडर पे जाने का मेन एक पहला जो रीजन था वो ओपन सोर्स है। हाँ, आई लव ऑल्सो। सबसे पहली बात, बिकॉज ओपन सोर्स है तो मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी है उस पर काम करने के लिए, उसके लाइसेंसिंग का इशू नहीं है, प्रमोशन का इशू नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके अंदर विदाउट एनी फियर। पहला रीजन। जब मैं शुरुआत कर रहा था उसकी, तो मुझे सबसे पहला डर था यूजर इंटरफेस का, बिकॉज बैक देन इट वाज लाइक वेरी टिपिकल। आज के डेट में क्या है कि काफी सॉर्टेड कर दिया है, इवन फ्रॉम द बिगनिंग वी डोंट हैव टू चेंज लाइक कंट्रोल्स, इट्स ऑलरेडी चेंज्ड। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बेसिक सॉफ्टवेयर से मिलती जुलती हैं आज के डेट में। 2.8 वाला काफी अच्छा हो गया। एग्जैक्टली 2.82 लेटेस्ट वाला, ठीक है, बट तब ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा था उस समय पे, बट ये सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंटेड नहीं थी। सो मुझे पसंद क्यों आया, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे पहले मुझे उसमें मॉडलिंग करने में बड़ा मजा आया था। शॉर्टकट्स, कंट्रोल आर दबाएंगे तो लूप्स क्रिएट हो जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो लूप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। यार सो मेनी शॉर्टकट्स, इट्स लाइक कि मुझे किसी टैब को क्लिक नहीं करना है। तो वो माया में नहीं था क्या? वो माया में नहीं था ऐसी चीजें? अच्छा, नहीं था। या आप राइट क्लिक करके आपको अगर माया में लूप पे जाना है, यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक देन लूप, सेलेक्ट दैट, और आपको इंक्रीज करना है तो आपको एट्रीब्यूट एडिटर में जाना पड़ेगा उसके, ठीक है। उसमें मल्टीपल लूप सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, 5 10 15 20 जो भी। यहाँ ऐसा नहीं है, आप स्क्रॉल करिए और आप क्रिएट हो जाएंगी 15 20 60 जितनी भी चाहिए आपको। ओह ओके, दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू बी वेरी फ्रैंक, मॉडलिंग के लिए, प्लस अदर शॉर्टकट्स आल्सो। लाइक आज भी मुझे याद है F12 अगर दबाएंगे तो आपका इंटरव्यू खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो सारी चीजें थी। प्लस जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी वो था उसका रेंडरिंग इंजन साइकिल्स। ओह ओके, हाँ, या बिकॉज वो उस समय बूमिंग पे था, और आई गेस कुछ सालों पहले तक उसको गूगल डेवलप कर रहा था। देन ब्लेंडर कम्युनिटी ने उसको परचेज किया एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग इट। ओके, इट वाज रियली नाइस। दैट टाइम आई वाज यूजिंग मेंटल रे, ओके।
रे ट्रेस शेडोज रियल टाइम जो लाइट जो Yes. शेडोज क्रिएट होती हैं या ग्लोबल इल्यूमिनेशन चीजें वाली जो चीजें हैं जो आज की डेट में अपने को आर्नोल्ड में बाय डिफॉल्ट मिलती है. व्हाई पीपल सेइंग कि आर्नोल्ड इज लाइक कि रियल टाइम रेंडरिंग इंजन, like not You real can time, get like in V-Ray it also. gives you a photorealistic output. Why? Because by default it's giving you a ray trace shadows, global illumination by default. You don't have to enable it. Disable कर सकते हो, but by default enable ही रहता है. तो इसीलिए वो But वो देखने उसमें मुझे वो तब मिल रहा था. और suddenly when even if I'm using like a basic shader and a basic lighting, मैं खाली F12 दबाऊंगा या रियल टाइम के लिए शिफ्ट Z दबाऊंगा तो मुझे आउटपुट ऐसा दिखता है. आई एम सीइंग एवरीथिंग इन रियल थिंग. मुझे शेडोज को शार्प नहीं आ रही है मेरी शेडोज, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. सो वो चीजें करने में मुझे मजा आने लगा, ठीक है. और मेरा जो बेसिक पॉइंट था, इट इज फ्री. सबसे जो मेन मेरी बात थी वो था फ्री था. और आज के डेट में भी ब्लेंडर कम्युनिटी इज ग्रोइंग सो वास्ट. आज भी वो फ्री है. इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट यूजिंग टुडे. इवन स्टिल मेरे अभी कुछ पिछले आई गेस 1.5 या 2 हफ्ते पहले मैंने एक और ब्लेंडर का रियलिस्टिक आउटपुट मैंने शेयर किया है. पीपल आर लाइकिंग इट. दे आर सीइंग व्हाट यू हैव क्रिएटेड. दे आर लाइकिंग इट. मैंने कम्युनिटीज पे शेयर किया है. ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने ब्लेंडर छोड़ दिया. आई कैन नॉट लीव इट, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं नहीं छोड़ सकता ब्लेंडर. इट्स लव एंड इट्स फ्री. okay. You are getting both of the worlds. Right, I understand that. I mean, with Blender you have so much content, and I really want to go with a detailed call only on specific to Blender experience. Now just quickly give me some points on how you switch to Houdini, and because that is also you never learn anywhere, you just learn from your own. Houdini सीखने का रीजन था because of that procedural output. Okay. Procedural, yes. If I'm creating a smoke or whatever thing in Maya, for an example, मैं FX की बात अगर करूँ, ठीक है, तो अगर मुझे किसी सेम मैंने एक स्फीयर के साथ चीज क्रिएट करी है, अगर मैं उसे टॉरस के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ, I have to recreate that for now. Okay, but in Houdini, because it's a procedural thing, what I need to do is मुझे उसके मेन फाइल नोड में जाना है और जहाँ पे मेरा स्फीयर कनेक्ट है या मेरा जो भी मेरा दूसरा मॉडल कनेक्टेड है वहाँ से हटा के मुझे टॉरस के साथ कनेक्ट कर देना एंड आई विल गेट द सेम आउटपुट. Right. The That's very interesting. first thing. Node The based. very first thing which attracts me. Because मुझे हर बार चीजों को रीडू नहीं करना. You can create a digital assets. Right. In there, if I have created some like fire का thing, okay, with the model. Now आज मुझे एक कैरेक्टर को जलाना है, ठीक है, मैंने जला दिया. नेक्स्ट टाइम मुझे पूरे गांव को जलाना है. आई हैव अ प्रीसेट. Okay, एक digital assets you can create, HDA. Exactly. So that is the power of Houdini, and because of that power, वो चीज उसने मुझे खींचा अपनी तरफ and I am doing it. And it has everything. Like procedural modeling, procedural shading, procedural effects, everything. And yeah, Mentora is really good. I know it's expensive renderer, but yeah, it's really awesome. ओके गाइस, सो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि अभिनेंद्र ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कमलेश ने शेयर किया कि कैसे वो लोग नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए सॉफ्टवेयर्स को सीखा. ये टाइम आपके लिए भी है. आप भी ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होकर नया कुछ सीख सकते हो. ठीक है, आप लोगों के अगर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे तो आप अभिनेंद्र से उनके चैनल पे जाके पूछ सकते हो. CG आर्टिस्ट अकेडमी इनका चैनल है. यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन उनका चैनल का लिंक. VFX एरिया है अपना कमलेश शर्मा का चैनल, यहाँ पे अभी ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप उनका चैनल भी विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको हुडिनी के डिजिटल एसेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, माया के रिलेटेड कुछ स्टफ़ अगर आपको देखना है और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ स्टफ़ देखना है तो आप VFX पाइपलाइन में देख सकते हैं. ठीक है, अभी गाइस अभी हम ज़्यादा आपको इससे आगे ना लेके जाके बस एक शॉर्ट और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ में इस कॉल को एंड करना चाहेंगे कि गाइस देखो, टाइम हार्ड टाइम है, आप अच्छे से लर्न करो और बहुत ही अच्छे से अगर आप अपने एक स्किल भी अगर आप एक नया बिल्ड कर पाओगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देने वाला है. आप इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, देखो खर्चे तो वैसे ही कम हो रखे हैं इस टाइम पे, बाहर जाना हो नहीं पा रहा, बाहर का खाना भी नहीं हो पा रहा, तो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो खर्चे इस टाइम लिमिट में हैं. आई होप यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सेविंग्स ऑल्सो, सो यू कैन एक्चुअली सर्वाइव विद दैट.
try apply for work from home. There are many companies who are actually looking for people who can work from home. यहाँ पे मैं बस एक पॉइंट और लेना चाहूँगा सबसे क्विकली कि यार प्रॉब्लम ये आ रही है ना, एक्चुअली वी विल डिस्कस दिस वर्क फ्रॉम होम प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन सेपरेट कॉल, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ एंड करना चाहूँगा उस बात पे आप सबसे पॉइंट लेके कि यार हम लोगों को सलाह तो दे रहे हैं कि यार कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, कुछ नई R&D करो। अभी मान के चलो कोई माया का बंदा है, उसको हुडी सीखना है, लेकिन उसके पास तो i3 का एक लैपटॉप है 13 इंच का, अब उसमें वो क्या हुडी चलाएगा और क्या करेगा R&D उसमें। तो यहाँ पे पता है एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है सभी के पास में कि उनके पास ना कुछ पावरफुल मशीनें नहीं है। और यहाँ पे मैं आप को सबको ये बताना चाहूँगा कि देखो यार, मैं पर्सनली अभी काफ़ी लोगों से मैं मिला और मतलब मैंने वर्चुअली बात की फ़ोन पे मेरे फ्रेंड्स से, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन, दे डोंट इवन हैव कंप्यूटर एट देयर होम। मतलब उनके पास है ही नहीं, मतलब घर में कुछ है ही नहीं। उनको पूछा कि क्यों नहीं है, तो बोलते कि टाइम ही नहीं मिलता था, पूरे दिन ऑफिस में रहते थे, ऑफिस का कंप्यूटर यूज़ करते थे, कभी नेट चलाना होता था तो फ़ोन में चला लेते थे, फ़ोन में डेटा रिचार्ज हो जाता है तो अब कभी घर पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घर पे आके सिर्फ सोते ही तो थे, तो क्या करना कंप्यूटर का। आज वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं क्योंकि अभी दुकानें खुल नहीं रही हैं, पावरफुल कंप्यूटर मिलेगा नहीं। अरे नया मतलब तो यार कितनी कंपनियां बंद होती रहती हैं, उनके ऑक्शंस होते हैं, वहाँ से उठा लो। अभी रिसेंटली एक कंपनी बंद हुई तो वहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स निकले, तो वहाँ से मैंने भी 1-2 वर्क स्टेशन उठा लिए। प्रीवियसली मैं भी काफ़ी HP के वर्क स्टेशन मिल जाते हैं डिसेंटली, और अब तो कोरोना की वजह से काफ़ी वैसे भी बंद होएंगी, तो देखते रहो कि कहाँ पे वर्क स्टेशन मिल रहे हैं, है ना। तो देखो वर्क स्टेशन पावरफुल मशीन होना बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना तो शायद ये सारी की सारी थ्योरी बेकार हो जाएगी आपकी। अभिनेंद्र, आपका पॉइंट इसमें? नहीं, डेफिनेटली मैं तो ये बोलूँगा, लोगों के पास आज नहीं है। मैंने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सिस्टम ले लिया था, बिकॉज इट्स लाइक अ एसेट, लाइक यू ऑलवेज सेड। मुझे याद है 2012 या 13 की बात है, 12 कि 2012, या सो यू यूज्ड टू से दैट कि ठीक है, गोली है अपने पास, जब बंदूक ही नहीं है तो चलाएंगे कैसे। हाँ, Simple as that. करेक्ट, यू आर इन अ वॉर। अगर आप वॉर में हो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, तो अगर आपके पास एडवांस वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और मतलब सारी की सारी चीजें हैं, तो आप वॉर को जल्दी जीत लोगे। लठ लेके चले जाओगे। Exactly. And correct. even when I started the work in 2015 in Mumbai, before that I had 2 machines, one laptop and other one is my HP workstation. That time, 2015. It's now 2020. Now why people don't have machine, I don't know. Because if you're an artist, you should have a machine. Right, I agree that. Kamlesh, how's your point? No, there is nothing you can do about it. How's your point, Kamlesh? कंप्यूटर चाहिए कि नहीं चाहिए लाइफ में पावरफुल? पॉइंट तो बहुत है इस पे। अभी ऐसे एक आदमी को देसी कट्टा देके खड़ा कर दो और सामने एक को AK-47 दे दो, कौन जीतेगा? AK-47 वाला जीतेगा ना। हाँ। और आज सबसे पावरफुल देश कौन है? अमेरिका है। क्यों है? क्योंकि उसके पास अच्छे हथियार है। आज नहीं है वो, हमेशा से। आज नहीं है। अब ये पॉलिटिकल, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल टॉक। Exactly. Don't go there. Don't go there. नहीं, बेसिकली we are talking on machine actually. So अगर आपके पास पावरफुल मशीन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अच्छा, आपके पास अभी कौन सी मशीन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? मेरे पास अभी मैं नई लेके आया हूँ, जस्ट वो रखी है सामने। अच्छा, इसके अंदर i7 प्रोसेसर है, हायर एंड। हाँ, ओके। हाँ, तो मतलब ये आपके पास एटलीस्ट i7 प्रोसेसर आज की डेट में होना चाहिए, मिनिमम इतना। आपके पास एटलीस्ट 32 GB ऑफ रैम होनी चाहिए। आप कंपोजिटर हो, आप 3D आर्टिस्ट हो, या आप कोई भी हो, 32 GB रैम तो मस्ट है। 16 GB रैम तो आप फोनों में आने लग गई। तो अभी आप थोड़ा सा कंप्यूटर में लेवल बढ़ाओ, क्योंकि विंडोज़ ही अभी इतना टाइम लेती हैं, इतना मेमोरी लेती हैं। ठीक है, ज़्यादा मेमोरी रहेगी, इट विल बी वेरी गुड। टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट। आपका ये इन्वेस्टमेंट है आपके कैरियर के लिए, आपके खुद के लिए। आपके अगर आपके पास अच्छी चीज़ें होंगी तो आप डेफिनेटली यू कैन क्रिएट सम गुड थिंग्स। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके पास पीसी नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है। और मेरे को पता है ये 10 साल वाला कौन बंदा है। मंगल ग्रह से। मेरे को पता है ये 10 साल वाला बंदा कौन है। ये
ठीक है ना, वो Sorry to वीडियो say that actually. वो वीडियो देख लेगा अभी, उसको पता है एक्चुअली में वो हमारा ही फ्रेंड है। I just want to. हाँ, तो भाई अभी इस वीडियो से हम तेरे को बता रहे हैं भाई, एक कंप्यूटर ले लेना, ठीक है। ले हाँ ठीक है। और रही बात वर्क स्टेशन की, तो अभी मैं तो मुंबई में हूँ, लेकिन मेरे घर पे इस टाइम मेरे पास अभी 3 वर्क स्टेशन है HP के। वो इस टाइम दे आर जस्ट लाइक पैक, सील पैक रखे हुए हैं घर पे, वो आई एम नॉट इवन यूजिंग दैम। पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 16 पोर्ट का 1 Gbps का स्विच है, कैट 6 केबल्स हैं, पूरा 27 इंचेस के कैलिब्रेटेड HP के ड्रीम कलर मॉनिटर हैं। वो सारा का सारा रखा ही हुआ है अभी यूज़ में। तो अभी मेरा यही लैपटॉप आ रहा है जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। आई मीन रिसेंटली 6 मंथ्स बैक आई परचेज दैट। तो ये मेरा एक हैवी इन्वेस्टमेंट रहा मेरे कैरियर के लिए, तो कि वो भी मेरे काम भी आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लास्ट ईयर इन्वेस्ट कर ली थी, तो इसका मेरे को इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत एडवांटेज मिल रहा है गाइस। मैंने लास्ट ईयर ही अपना फ़ोन अपग्रेड कर लिया था, लास्ट ईयर ही मेरा कैमरा मैंने HD कैमरा, लॉजिटेक का कैमरा बाई किया, एक डिसेंट माइक लिया मैंने, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऑडियो टेक्निका का माइक मैंने लिया। और लैपटॉप तो एज यूजल यू कैन सी दैट फुल अनबॉक्सिंग ऑफ HP ZBook विच इज़ वेरी डिसेंट लैपटॉप। आई मीन इट्स गिव मी ए एबिलिटी, इसमें मतलब इतनी फ्रीडम है कि अभी आपको कुछ भी सोच करना है ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनरील स्टार्ट करना है तो कर दो, तुरंत स्टार्ट करो और फटाक से सीन खोलो, और मतलब जो करना है करो, वुड नहीं करना है करो, अनरील करना है करो। आप सारे के सारे बेंचमार्क वीडियो मेरे चेक करो चैनल पे कि कितना पावरफुल लैपटॉप है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका अच्छा खासा बजट है, पैसा है अगर आपके पास, तो आप इसी में जाओ। आपको अभी तो पता नहीं रेट में कोई क्या अंतर आएगा, कुछ कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, पर एटलीस्ट इफ़ यू हैव लाइक 5 lakhs और अबव टू इन्वेस्ट, एंड डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट दिस काइंड ऑफ लैपटॉप। अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए तो 5 लाख के अंदर तो काफ़ी अच्छा डेस्कटॉप आ जाएगा। हम लोग उसके लिए एक अलग से आपके लिए कॉल बना देंगे गाइस। आई थिंक कि ये कॉल अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तक आते आते काफ़ी लोग अभी तक रुके भी होंगे, काफ़ी लोग तो चले भी गए होंगे। तो गाइस अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है और कोई बंदा इंटरेस्टेड था जो बीच में छोड़ के चला गया, आप उसको फिर से शेयर कर देना, ताकि वो देख ले कि भाई इसमें काम की चीज़ें भी थी। स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बोला कि भाई आप ले ऑफ हो गए और आपका ये हो गया वो हो गया, पर एंड में आपको यही बता रहे हैं कि यार जो भी चीज़ें अच्छी है, सभी लोग साथ में हैं, आप चीज़ें शेयर करो। अगर आप हमें पर्सनली जानते भी नहीं हो, तो तीनों के आप फेसेस इसमें देख ही रहे हो, चैनल्स के तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, कमेंट्स में अपने नाम वाम डाल के शेयर करो, और मेक इट दिस VFX एंड एनिमेशन फैमिली बिगर। क्योंकि अभी तो हम इसी तरीके से काम करने वाले हैं, और इसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है। अभी कुछ रियल मीटअप तो होने वाला नहीं है, ठीक है। ओके ग्रेट, This is very good actually. हाँ तो ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू कमलेश, थैंक यू अभिनेंद्र फॉर जॉइनिंग मी Thank विद you, दिस। Raju ऑलराइट, so we'll meet again with some interesting topics. So thank you guys. Please subscribe to VFX Pipeline channel. Please subscribe to CG Artist Academy. Please subscribe to VFX area. We'll see you in our next videos. Okay, thank you, Rajiv. See you. Thank you very much. Bye. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Take care.